بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، بہت ہی زیادہ، اور ان کی قسمیں بھی بہت ہیں۔ درود شریف کی اقسام بہت زیادہ ہیں۔ فضیلت اتنی بیان کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی درود شریف پڑھنا اور پڑھانا ہے، ایسے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیت مشہور 56 نمبر آیت ہے سورۃ احزاب کی، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ اللہ نبی پر درود بھیج رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی بہت اقسام ہیں، بہت۔ اس کی سب سے جو چھوٹی قسم ہے، سمٹا کر آ جاتی ہے، وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں بھی لوگ کئی چیزیں نکال لیتے ہیں، لو جی صلی اللہ علیہ وسلم کہا، آلہ ہی کیوں نہیں کہا، جو آپ کی آل ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو میں یہاں دو باتیں تھوڑی سی ضمناً بات کہتے ہیں، جیسے جملہ معترضہ کے طور پر کہتے ہیں، دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آل، ہر مسلمان کلمہ گو، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں، وہ ہے میری۔ ہر مسلمان جو بھی کلمہ گو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، بس۔ جو بھی کلمہ گو ہے وہ آپ کی آل میں آتا ہے۔ جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو آپ کی ساری آل پر وہ ہو جائے گا۔ ایک دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ ولی اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، یہ کوئی الگ کیٹیگری کے لوگ نہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ اس میں کوئی شک۔ اللہ کا دوست ہونا بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ اس میں کیا ہے، کون ہے اولیاء اللہ؟ ہمارے ہاں بھی ذرا الگ الگ سے ہیں نا، وہ جبے کبے والے اور نظر آتے ہیں اور بنے ہوئے ہیں، اور آگے بھی جو سلسلہ ان کا چلتا ہے، پھر آگے مریدین ہوتے ہیں وہاں سے۔ تو میرے بھائی، میری پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اللہ کے دوست ولی اللہ کون ہے؟ ہر کلمہ گو، نبی کا جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، ٹھیک؟ آگے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے دوستی کے نہیں ہوتے درجے، کوئی کم دوست، کوئی زیادہ دوست، کوئی کس قسم کا دوست، کوئی کس قسم کا دوست، اسی طرح ہی اللہ کے دوست تو اعمال کے مطابق درجے ہیں۔ یہ قرآن پاک نہیں ہے، اب حوالہ میرے ذہن سے میں نہیں، کہ اعمال کے مطابق درجے ہیں سب کے، تو یہ اس کی دوستی والے بھی اعمال کے مطابق درجے ہیں۔ جتنے زیادہ اعمال سے مراد میری اس کے وہی احکامات ہیں جنہیں ہم اعمال لیتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں نے پانی کا بلبلہ کہتے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بے ضرر ہومیوپیتھک اعمال کہہ لیں آپ ان کو، یہ ہومیوپیتھک قسم کے اعمال ہیں۔ آپ کا دل مطمئن ہے ان پر تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ تو یہ میں بات ہے، ضمناً دو باتیں کی ہیں، ولی اللہ کی اور دوسرا آل کی۔ ہر کلمہ گو جائے آگے اعمال کے مطابق دونوں چیزوں کو درجے آ جاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی درود شریف کی، سمٹا کر یہ آ گیا کس پر؟ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی کے نام کے ساتھ یہ لینا ہم ضروری قرار دیتے ہیں، ایک طرح سے فرض ہی قرار دیتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی یہ احزاب کی 56 نمبر کی آیت سے یہ بات لیتے ہیں۔ میرا بس سوال ہے ادھر سے کہ اب اللہ تو پڑھ رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، پڑھنے بھیج رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آیا، اس میں گرامی آیا، وہاں تو اللہ نے کوئی ایسا درود شریف نہیں پڑھا بھیجا۔ ہمیں تو مطلب اگر ہوتا
तो वो साथ वो भी नाजिल होता। मिसाल के तौर पर सूरत फतह की आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार वाले, वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह आया तो उसके साथ कोई तो नहीं आया। तो कुरान कह रहा है कि आप अल्लाह भेजता है, अल्लाह भेजता है, ये तो जरूरी है, मगर उधर भी तो अल्लाह का ही कलाम है ना, वो कोई किसी बाहर से किसी और का कलाम तो नहीं है। तो वहां जिस तरह हम समझते हैं वहां आना चाहिए था सूली तौर पर, कोई ना कोई जरूर, अगर वो आ जाता तो फिर ये शायद इतनी किस्में भी ना बनती। हमारे सामने वो एक ही होता, हम उसी को ही पढ़ लेते, पता लग जाता जे है। मेरे भाइयों, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, ये भी बड़ा नाजुक सा मसला है। ये नहीं, जो हम दुरूद शरीफ का मतलब समझ रहे हैं, ये वो नहीं बनता ही नहीं, इसलिए नहीं वहां है। सूरत फतह की आखिरी आयत में जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज आए हैं, नहीं है ना, अगर ये इस वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वो दुरूद नहीं है जो अल्लाह भेज रहा है, वो कुछ और चीज है। सारे दस्त आप मेरे इस बात को मेरा सवाल ही समझे, जिस तरह मैं सलात पर सवाल करता हूँ कि जो सलात है ये वो सलात नहीं जो हम करते हैं। फिर आगे उसकी जुजियात जो बयान की जाती हैं ऐसे बनती नहीं है। नबी अल्लाह के अहकामात में तरमीम कर नहीं सकता, उसमें हमने अजाफे किए हुए हैं, उनके सुनतें साथ शामिल की हुई हैं, अलग से 2 सुनते हैं, फिर 4 सुनते हैं, फिर आगे 4, मतलब जो जो हर नमाज के साथ साथ, और फिर जो फर्ज हैं उनके अंदर भी सुनते हैं, अलग से सुनते हैं। यानी कि 2 फर्ज हैं अगर फजर के, तो उसके अंदर सुनते भी हैं, मुस्तहबात भी हैं और फर्ज भी है। वो क्या फर्ज है, वो तो फर्ज हो गया। मैं अर्ज कर रहा हूँ सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत के तहत नबी अल्लाह के अहकामात में तरमीम नहीं कर सकता। तो इसी तरह ही आप मेरा ये सवाल है कि जिसे हम दरूद शरीफ कहते हैं, ये दरूद भेजता है जो अल्लाह और फरिश्ते, ये वो नहीं है जो हम कर रहे हैं और जिस पर इतना जोर है हमारा, और जगह जगह हमारे स्टिकर लगे होते कि आज आपने दरूद पढ़ लिया है, नमाज नहीं, हालांकि नमाज तो फर्ज है, ये तो तय है ना कि नमाज फर्ज है, और दरूद फर्ज तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि नहीं फर्ज, अगर फर्ज हो तो मुझे बता देना कि ये फर्ज है। अगर मैंने मोहम्मद अकेला नाम ले लिया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा तो क्या मैं गुनाहगार होऊंगा? आप मेरी ये रहनुमाई कर दें, मुझे प्लीज जरूर बताइए कि अगर मैं अकेला ही नाम ले लूं मोहम्मद है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं, फिर ये नाम मंसूब उधर चला जाता है, पता चलता है कि उनका जिक्र ग्रामी का उनका जिक्र हो रहा है। वैसे मैं अर्ज करता हूँ, अगर मैं अकेला ही नाम ले लूं, हजरत मोहम्मद कह दूं, तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ नहीं कहता, तो आप बताएं क्या ये गुनाह होगा मुझे? ज़ाहिर है जो फर्ज छोड़ता है वो तो गुनाहगार होता है, फर्ज तो फर्ज है, वो तो पूरा है। तो फिर ये क्या है, ये जो दरूद शरीफ है, फिर मैं कहता हूँ कि ये फर्ज, मेरा ख्याल है ये फर्ज नहीं है, तो फिर क्या है? फिर मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो अल्लाह ताला कर रहा है, ये जो अहज़ाब की 56 नंबर आयत में है, ये वो दरूद नहीं जो हम समझ रहे, जो हम कर रहे हैं, जिस पर इतना जोर है। बहरहाल बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सब का सब कुछ जो है ना, नबी और उसके बाद जो कुछ भी है, वारफाना ला का जिक्र हमने नबी का, ये सारे का सारा नबी का दीन है। उसका जिक्र बुलंद किया, उसका दीन को बुलंद किया, उस पर फरिश्ते और रहमत भेजते हैं, उसके दीन के मददगार हैं अल्लाह और फरिश्ते, जो और नबी के दीन के, जिसे हम दीन इस्लाम कहते हैं। और दीन इस्लाम वो वाला दीन इस्लाम जो लोगों के आपस के तल्लुकात को खुशगवार और सलामती वाले बनाता है, जो हकूकुल इबाद के गिर्द घूमता है। मरकज व महवर उसका हकूकुल इबाद है, अल्लाह के अहकामात के तहत हकूकुल इबाद को पूरा करना। जब वो पूरे हो गए, अल्लाह के अहकामात के तहत हकूकुल्लाह भी पूरे हो गए। तो मैं मतलब ये बात आपसे कहना चाहता था। तो बस मेरे भाइयों, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अगर इसमें जो भी आप मेरी रहनुमाई करना चाहें
तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। मैं काबिल इस्लाह हूँ और मैं इस्लाह चाहता हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं कोई आलम नहीं हूँ। सवालात मेरे जहन में आते हैं, अलझाव पैदा होता है, मैं चाहता हूँ कि वो दूर हो जाए। इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर आज मेरे एक दोस्त दफ्तर में बात हुई, तो कुरान पाक को उसने ख़त्म किया था रमज़ान शरीफ का, तो सब जाकर गले मिले, बहुत ये वो फजीलत। और साथ साहब एक बोले कि इसकी बहुत फजीलत है, पता नहीं कितनी पुश्तें एक हाफिज बख्शवा लेता है। तो मैंने अर्ज़ किया, मेरे दिमाग ऐसा ही है, मैंने क्या रखा हूँ कहूँ कि मेरे जहन में सवालात आते हैं। तो मैंने उससे उससे भी कहा, मैंने कहा यार ये बात दुरुस्त नहीं लगती। कोई दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं होगा रोज़े महशर, क़यामत वाले दिन किसी ने दूसरे का बोझ नहीं उठाना। अगर एक हाफिज ने 7 पुश्तें बख्शा दी, ये क्या हुआ फिर? और इसको मंसूब भी हम नबी की तरफ करते हैं। तो ये वो एक तरह से थोड़ी सी तलखी तो नहीं हुई। मैंने कहा यार आप हम बूढ़े हो गए हैं, हमें कम से कम अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं जी, बहुत हर किसी का अपना अपना ख्याल है। बिल्कुल हर किसी का अपना अपना ख्याल है। वो अपना अपना ख्याल वो हुज्जत नहीं है दीन में, वो ठीक नहीं है। एक ख्याल होना चाहिए, एक अल्लाह है, एक रसूल है, एक कुरान है, एक दीन है, उस कुरान से अखज़ किया हुआ। तो ख्याल एक होना चाहिए, वही ख्याल दुरुस्त होगा जो कुरान से अखज़ किया हुआ। तो कुरान कहता है कि कोई वजन उठाने वाला नहीं होगा। जब वजन उठाने वाला नहीं होगा तो फिर हाफिज कुरान कैसे किस तरह इतनी पुश्तों को बख्शवा लेगा। खैर वो बात लागू हो गई। इसी तरह मैं ये अर्ज करता हूँ कि ये जो है दरूद शरीफ या दरूद जो फरिश्ते रहमत भेजते हैं, जिसको हम दरूद कहते हैं, ये नहीं है वो जो हम ये हरकत कर रहे हैं। बस मैं यही बात आपसे करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।